गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Okay. Start here iron equilibrium, lecture number 7. In last lecture we learned about the hydrolysis of salt, right? Hydrolysis salt means salt is a react with the water and gives what is a own parent acid and what is a basis, acid and basis. And then we learned that is a KH. क्या फाइंड किया? KH फाइंड किया. KH for the weak acid. Strong is made up of the weak acid and is a strong base. Strong acid and weak base, or weak acid and weak base, right? Strong acid, strong base salt does not undergo hydrolysis because both part are the cations and both are the strong. Again, dissociate to form the ions. That's why it does not undergo the hydrolysis. Then KH sub KW, relation between the KH and what is the KW for and KM. KW is equal to for weak acid and strong base. KW is equal to Ka into what is the KH. Next for the Kb into KH is equal to KW. And for weak acid, weak base, KW is equal to Ka into Kb into what? KH. Ether relation. Right? Right ना? Then आज हम पढ़ेंगे पीएच. क्या निकालना है? पीएच बाय यूजिंग केडब्ल्यू, के, केबी, इनका यूज करके हमें क्या निकालना है? पीएच निकालना है. मींस कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट, दिस आल्सो पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस. ये भी किसका पार्ट है? हाइड्रोलिसिस का. दिस आल्सो पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस. Calculation of pH of solution of salt of strong acid and what's weak base. First हम देखेंगे किसका? Salt of strong acid and weak base. Any example here? Salt of strong acid and weak base. कोई भी एक example बताओ. Salt which is made up of strong acid and weak base. लो एक strong acid और एक base लो. NH4Cl. NH4Cl is the salt of strong acid and weak base. क्या बोला? NH4Cl. ये किसका बना हुआ है? NH4OH. NH4OH ये कौन है? ये कौन है? वीक बेस है. क्या है? वीक बेस. वीक बेस. और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिया? HCl लिया. ये स्ट्रॉन्ग एसिड. इससे बना हुआ सॉल्ट कौन सा है? NH4Cl. क्या ये हाइड्रोलिसिस देगा? यस देगा. राइट. ये NH4Cl, NH4Cl dissociate give the ions. आयंस क्या बनाएगा इसका? NH4 प्लस प्लस व्हाट इज Cl माइनस. और वाटर के आयन देखेंगे H2O. क्या मिलेंगे आपको? H प्लस प्लस व्हाट इज OH माइनस. इसमें NH4 और OH रिएक्ट होगा, बनाएगा NH4OH. वो क्या है? वीक है. लेकिन जो HCl है यहाँ पे, H प्लस और Cl माइनस, इनका रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा यहाँ पे HCl बनेगा. क्या बनेगा? HCl. HCl बनने से HCl कौन सा स्ट्रॉन्ग है? वापस टूटेगा कंप्लीटली. H प्लस और क्या देगा? Cl माइनस. राइट. इसका मतलब NH4 react with OH form NH4OH, but H plus and Cl minus does not react. Reacted but again what form? H plus and Cl minus. मतलब वाटर के जो OH माइनस आयन थे यूज हो गए. क्या बचे? H प्लस आयन बचे. क्या बचे? H प्लस. NH4 पॉजिटिव आयन रिएक्ट. पॉजिटिव मींस व्हाट इज द कैटायन. दिस इज नोन एज अ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. क्या बोलते हैं इसको? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. और क्या बचा? H प्लस आयन. H प्लस आयन रिमेन देयर. दैट्स व्हाई इट इज अ एसिडिक और बेसिक. एसिडिक होगा. क्या होगा? एसिडिक.
means acidic in nature. Okay, means this NH4Cl undergo hydrolysis. Hydrolysis देगा. Okay, now let's learn calculation of pH of the solution. और ये solution का हमें क्या करना है, अभी pH निकालना है. pH of strong acid, pH of solution of salt of strong acid and weak base. Salt उसका solution मतलब हम क्या करेंगे, water यूज करेंगे. क्या है, salt of कौन सा salt, strong acid and weak base. उसका solution मतलब उसको क्या करें, उसके अंदर क्या डालेंगे, water डालेंगे. मतलब वो क्या देगा, हाइड्रोलिसिस देगा. हाइड्रोलिसिस देगा, उसका क्या निकालना है, pH निकालना है. उसका pH क्या होगा वो निकालना है. समझे? Calculation of pH of solution of salt of strong acid and weak base. Consider example of salt of strong acid HCl and weak base क्या लिया, NH4OH. weak base क्या लेंगे, salt किसका लेना आपको, strong acid और weak base. strong acid क्या लिया, HCl और weak base क्या लिया, NH4OH. उनका जो salt है वो कौन, NH4Cl है. क्या है, NH4Cl. of NH4 plus and Cl minus who will undergo hydrolysis. Cl minus will not undergo hydrolysis as it will not combine with the H plus ion to form HCl, which is a strong acid, as the strong acid will be again dissociate, give what, H plus and what is the Cl minus ion, जो आपको अभी पता है, right? So NH4 plus undergo hydrolysis by combining with what is the OH minus ion of H2. जो सॉल्ट है, सॉल्ट कौन सा लिया आपने, NH4Cl लिया. NH4Cl के दो आयन, कैटायन और क्या एनायन. कैटायन react with the OH minus ion of the water, but anion Cl minus does not react because anion is a part of the strong acid. We form strong acid HCl, again dissociate form H plus and Cl minus ion, that is only a cation is undergo hydrolysis. So this hydrolysis is known as cationic hydrolysis. Okay, क्या बोलते हैं इसको, cationic hydrolysis. So NH4 plus H2 gives NH4OH plus what is the H plus ion. क्या दे रहा है, H plus ion. इसलिए कौन सा आयन लिया, पॉजिटिव आयन ओनली. नेगेटिव आयन लिया नहीं है. हम वीक बेस और वीक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस उसका एग्जांपल लेंगे तो वहां पे दोनों आयन क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे. समझे? लेकिन यहाँ पे देखो कौन सा है, NH4. जो वीक वाला पार्ट है वही क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस देगा. स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस देगा नहीं. Concentration of salt is suppose let the concentration of salt is what given as a C मोलर. क्या लिया, C मोलर. उसका concentration क्या लिया, C मोलर. So initial concentration of NH4 plus will be Cm. H2O excess है, उसका concentration कैसा, negligible लेते हैं, right? डैश. NH4OH फॉर्म ही नहीं हुआ मतलब जीरो होगा. H प्लस फॉर्म ही नहीं हुआ मतलब क्या हो गया, जीरो. इनिशियल मतलब टाइम t जीरो था, आपने रिएक्शन स्टार्ट किया ओ टाइम पे. ये क्या हो गया, C. ये जीरो और क्या हो गया, जीरो. इसमें से कुछ आयन क्या करेंगे, H2O के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे. मतलब क्या देंगे, हाइड्रोलिसिस देंगे, राइट. ऐसा डिसोसिएशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वैसा हाइड्रोलिसिस में कौन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, राइट. कौन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. ऐसा डिसोसिएशन ओस्टोल डायल्यूशन लॉ वहां पे अल्फा है. अल्फा को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट. ओडोर बन क्या पे सी. पहले स्टार्टिंग में क्या लिया, यहाँ पे सी लिया. सी क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन. रिएक्शन होने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वीक पार्ट है. किसके साथ रिएक्ट होगा, OH माइनस के साथ. क्या बनाएगा, NH4OH बनाने वाला है. मतलब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज. H प्लस आयन भी क्या होंगे, इंक्रीज. गेटिंग इट, समझ में आ रहा है. देखो NH4 प्लस है, H2 की जो आयन H प्लस और OH माइनस आयन, उसमें से OH माइनस आयन के साथ कौन रिएक्ट होगा, NH4. मतलब NH4 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज. समझ में आ रहा है. अभी कितना डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा. आपने कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया, C लिया. हाइड्रोलिसिस कितना है, EH है. EH इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मींस
हाउ मच आयंस आर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, पूरे इसमें से कितने आयंस हाइड्रोलिसिस में गए, वो कौन बताता है? एच बताता है, राइट। आपके पास इसका कॉन्सेंट्रेशन का सी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 क्या है? NH4 प्लस, क्या है? NH4 प्लस। उसमें से 10 मॉलिक्यूल क्या हो गए? हाइड्रोलिसिस में गए, 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस में गए। तो एक आयन हाइड्रोलिसिस जाएगा, उसके लिए क्या है? एच है। 2 आयन जाएंगे तो 2H होगा, 3 हो गए तो 3H होगा, 4H होगा तो 4H। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C है। आपने कितना लिया? C लिया है। क्या लिया है? C। C आपके पास है। जब हाइड्रोलिसिस में आयन टूटेंगे, वाटर से रिएक्ट होंगे, वो कितने होंगे? CH होंगे ना। कितने होंगे? CH होंगे, बराबर। उसमें से कितने निकले, मतलब कितने मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट हो गए, वो कितने होंगे? CH। मतलब C में से CH क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। जैसे 100 में से 10 ले, 100 माइनस क्या होंगे? 10, राइट। ये 100 है, तो ये 0 है, 0 है, यहां से 10 बाहर निकले, मतलब 100 में से 10 निकलेगा ना। 100 में से कितना? 10, राइट। वैसा यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे जितना इंक्रीज हो, जैसा NH4 1 हो गया तो यहाँ पे 1 आएगा। NH4 2 है तो ये क्या होगा? 2 होगा। NH4 3 है तो 3 और ये 3 होगा, बराबर। जितने टूटेंगे, जितने हाइड्रोलिसिस जाएंगे, उतना इसका NH4 OH और क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। जैसे अल्फा के लिए लिया था, अल्फा के लिए आते हैं 1, उसके बाद 0 0, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या? अल्फा लिया तो 1 माइनस ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। उसके बाद क्या निकाला आपने? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी लिया, तो अल्फा अपॉन वी ये क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? डायरेक्ट क्या लिया? कॉन्सेंट्रेशन लिया। क्या लिया? डायरेक्ट। 1 अपॉन वी का मतलब क्या होता है? C। मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या? डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेड पार्ट में क्या है? C है, ये 0 है, 0 है। When they are reacted, when they are reacted at reaction, ये कितने माइनस होंगे? माइनस CH होंगे। ये प्लस CH होंगे, ये भी क्या होंगे? प्लस CH, राइट। ये रिएक्टेड कितने होंगे? CH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में जितने जाएंगे वो क्या होंगे? CH होंगे, तो फॉर्म भी उतने होंगे, दोनों भी। नेक्स्ट, वेर H is the degree of hydrolysis. Then at equilibrium, ये कितना होंगे? अभी C आपके पास माइनस कितने होंगे? CH, तो बचेगा यहाँ पे C माइनस CH, और ये CH, और ये क्या हो गया? CH। यहाँ पे समझ में आया? C माइनस क्या लिया? CH। C माइनस CH करो, मतलब C कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 माइनस CH। क्लियर? समझे? यही है, आएगा। C थे, C में से माइनस CH हो गए, कितने? माइनस CH, कितने बच? C ब्रैकेट 1 माइनस CH, और फॉर्म में कितने होंगे? CH CH। यहाँ पे C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, और H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। समझा? ये समझ में आया? H समझा आपको? H मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मींस हाउ मच आयंस आर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब NH4 आयन कितने H2 के साथ रिएक्ट होंगे, OH माइनस के साथ रिएक्ट होंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितने नंबर ऑफ मोल्स, जैसे आपने यहाँ पे 1 लिया होता, ये 0, ये 0, राइट। तो ये 1 माइनस क्या होगा? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। लेकिन हमने क्या बात की है? हाइड्रोलिसिस की बात की है। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है? सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स 1 रहेगा तो वॉल्यूम 1 अपॉन वी, इसलिए C इज इक्वल क्या लिखते हैं? 1 अपॉन वी लिखते हैं। वो टाइम पे 1 अपॉन वी रहेगा। 1 अपॉन वी, यहाँ पे 1 अपॉन वी मतलब क्या हो गया? C, राइट। ये समझा? इनिशियल, at reaction, at equilibrium, right? Now, in general, the degree of hydrolysis, that is the H, is very, 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 very less than the 1. बहुत छोटा होता है। आपके पास thousands है, 1000 में से कुछ
5, 10, 15 इतने क्या होंगे उसमें से डिसोसिएशन डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H2 के साथ उसका रिएक्शन होगा, इतने कम होंगे। यानी H का वैल्यू कैसा है, वेरी वेरी लेस देन द 1। दैट्स व्हाई 1 माइनस H वैल्यू कितना होगा, ऐसा 1 माइनस अल्फा कितना था, 1 था, वैसा यहाँ पे भी क्या होगा, 1 माइनस H इज नियरली इक्वल टू व्हाट, 1। तो KH इज इक्वल टू, KH का फॉर्मूला क्या है, एसिड बेस अपॉन सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। वाटर का साथ में लिया है इसलिए क्या आ गया, KH आ गया, नहीं है KH में तो कौन है, K इंटू K डैश, ये क्या है KH है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। नाउ पुट द वैल्यू हियर, NH4OH के कितना है CH है, H प्लस कितना है CH है, और NH4 कितना है यहाँ पे देखो C ब्रैकेट 1 माइनस CH। क्लियर, इसमें से कौन कैंसिल होगा, C कैंसिल होगा, राइट ना, 1 माइनस CH नियरली इक्वल टू क्या 1 रहेगा, राइट, और आंसर क्या बचेगा CS स्क्वायर, राइट ना, आंसर क्या आएगा CS स्क्वायर, दैट इज क्या बोल रहे, हाँ C कैंसिल होगा, H क्या होगा H स्क्वायर होगा, CS स्क्वायर ना, 1 माइनस CH क्या हो गया, 1 माइनस CH नियरली इक्वल टू 1, तो अपॉन क्या आएगा, वो नहीं आएगा। सो KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 1 माइनस CH, यानी 1 माइनस CH यहाँ पे क्या होगा नियरली इक्वल टू 1 होगा, तो आपके लिए वैल्यू दिया है 0.05 से ऊपर जो रहेगा वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो आपको वैल्यू वहां पे जैसे अल्फा का यूज करते हैं वहां पे H का भी यूज कर सकते हो, 1 माइनस CH एक्चुअली H इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन क्या 1 रहेगा, मीन CH स्क्वायर रहेगा। समझ में आई है, क्या लिया इन्हीं से लिया, सॉल्व कौन सा था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड weak base, undergo hydrolysis, weak part undergo hydrolysis, give the NH4OH, H plus ion they form, initial concentration reaction when is reacted minus CH plus CH and plus CH form, at equilibrium it form C minus CH and what is the CH, इसके ऊपर क्या लिया, लॉ ऑफ मास एक्शन लिया, उसमें से KH निकाला, KH कितना आ गया CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस CH, को क्लियर है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमें पीएच निकालना है, क्या निकालना है पीएच, ये तो आ गया केएच, पीएच तक पहुंचना है। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये 4 मार्क्स ले सकता है, कितना 4 मार्क्स। और इसके ऊपर एग्जाम्पल जो है एंट्रांस के लिए पीएच के ऊपर, इसी के ऊपर आते हैं, फाइंड द पीएच, आपको सॉल्व दिया रहेगा, उसका क्या निकालना है पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने आपको ये सब प्रोसेस करनी पड़ती है, वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, यहाँ पे सी दिया है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन दिया रहेगा 0.01 0.02, ये कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, तो आपको पूरा ये सब करना है प्रोसेस, उसके बाद आएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ एंट्रांस है, मतलब क्या होता है शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं, उसका यूज करना है। 1 माइनस H नियरली इक्वल टू व्हाट इज 1, सो KH इक्वल क्या बन गया CH स्क्वायर, ये आपको आ गया CH। अभी H और C, KW, KA, KB, इनका हमें क्या करना है यूज करना है, राइट। H इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट KH अपॉन C, H स्क्वायर है ना, H स्क्वायर इक्वल क्या KH अपॉन C आ गया, मींस H इक्वल टू रूट KH अपॉन C। इसको इक्वेशन नंबर सपोज 1 दिया, अभी हमें KH निकालना है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो लास्ट यहाँ पे देखा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या था, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसा कि NH4 प्लस क्या लिया H2O, हाइड्रोलिसिस हो गया, बन गया NH4OH प्लस क्या हो गया H प्लस आया था। यहाँ पे जो C माइनस क्या हो गया CH, मतलब C ब्रैकेट 1 माइनस CH, तो इसका आ गया CH, ये आ गया CH, मींस व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। हमें pH निकाल, देखो pH निकालना है, pH क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट, क्या है नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट ना, यही तो फॉर्मूला pH के लिए है।
तो अभी ये पीएच निकाल दो, हमें पहले से क्या चाहिए, H प्लस। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, CH के लिए हमें क्या चाहिए, C और H चाहिए। C तो वहां पे दिया है, H निकालना, H क्या आ गया, रूट के H अपॉन C। समझे? सो रूट के H, H इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट के H अपॉन क्या हो गया, C। KH into C, why? Because here H plus ion concentration is equal to क्या था, CH, C into H, H का वैल्यू कितना है, रूट KH अपॉन क्या है, C। इसमें से एक C मतलब देखो x अपॉन रूट x, इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू कितना आता है, रूट x का मतलब क्या हो गया, रूट x इंटू क्या होता है, रूट x। उसमें से एक रूट x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, रूट x। वैसा ही है C रूट के H अपॉन C, इसमें से रूट C क्या होगा, कैंसिल, बचेगा ये आएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू KH इंटू C। नाउ एक मिनट में आपको पूरा दे दूं क्या एक्सप्रेशन, डायरेक्टली बोर्ड पे लेता हूं। KH is equal to CH square, right? So H is equal to अंडर रूट क्या आ गया, KH अपॉन C। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 1। बट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या था, CH, क्या है, CH, दैट इज इक्वल टू C इंटू रूट क्या H, KH अपॉन क्या है, इज इक्वल टू रूट KH इंटू क्या आ गया, C। इज इक्वेशन नंबर क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। बट वी नो दैट KW is equal to KH इंटू क्या है, K। किसके लिए, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विद वीक बेस, किसके लिए ये, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसके लिए। बराबर ना, ये रिलेशन निकाला था ना लास्ट लेक्चर में, क्या था, KW is equal to KH इंटू KM। नहीं के भी है वहां पे, देखो जरा, यहाँ पे KW इक्वल टू KH इंटू KB, KH को KB है, KW अपन क्या लिखा, KB, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको मिला H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट KW इंटू C अपॉन क्या आ गया, KB। ओके, अभी पीएच तक पहुंचना है। पीएच क्या है, पीएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ, देखो पीएच इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो टेकिंग हियर नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लो, लॉग लेना है, लॉग बेस 10 नेगेटिव लॉग, तो माइनस लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ H प्लस आयन, राइट, इज इक्वल टू यहां पे भी माइनस लॉग ऑफ बेस 10 कौन है, रूट KW इंटू C अपॉन क्या है, KB है, अपॉन क्या दी है, KB। सिंप्लीफाई करो इसको, ये क्या बन गया, पीएच इज इक्वल टू रूट मतलब क्या हो गया, हाफ, माइनस हाफ ऑफ आगे लिखे लॉग बेस 10 नहीं लिख चलेगा बाद में, KW इंटू C अपॉन क्या हो गया, KB। लॉग सेपरेट करो, इज इक्वल टू माइनस हाफ इन ब्रैकेट लॉग ऑफ KW जो मल्टीप्लाई हो गया होगा प्लस लॉग ऑफ C, जो डिवाइड है वो क्या होगा, माइनस, जो डिवाइड हो क्या होगा,
माइनस लॉग क्या होगा के बी, ओके, मल्टीप्लाई इनसाइड मीन्स माइनस है अंदर तो सबको, हाफ ऑफ माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ सी और माइनस लॉग ऑफ के बी, ओके, समझा? अब ये क्या है? पी के डब्ल्यू, ये क्या है? माइनस लॉग सी, और ये क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? पी के बी, क्या लिखोगे? पी के बी मीन्स अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन पी एच इक्वल टू ये है, तो हाफ ऑफ पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ इन ब्रैकेट ये कौन है? पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू, इसको लो पहले, माइनस पी के बी, कौन है? पी के बी, और उसके बाद क्या लेना है? माइनस, ये पूरा क्या है? माइनस है, या माइनस लिखो या प्लस करके या लिखो पी सी, क्या लिखोगे? पी सी, राइट ना? पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ बेस 10 एच प्लस आर, तो इसलिए सबका वैल्यू क्या? पी के फॉर्म में लिखा, राइट? माइनस पी के प्लस पी सी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? 14, कितना होता है? आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है? के डब्ल्यू कितना होता है? वो 10 रेज़ टू माइनस 14, एंड पी के डब्ल्यू कितना होता है उसके लिए? 14 होता है, माइनस पी के बी, और माइनस करके लॉग सी लिखेंगे तो भी चलेगा, लॉग सी, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, या और इसके आगे पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ से 14 कितना हो गया? 7, माइनस इनका हाफ लो, माइनस दोनों में साइन कॉमन लिया, माइनस हाफ, ब्रैकेट में क्या होगा? पी के बी प्लस लॉग सी, ये यूज करेंगे तो भी चलेगा, पी एच इज इक्वल टू, समझे क्या? इसको हाफ से डिवाइड किया, 47 हो गया, ये हाफ, दोनों का हाफ जो बाहर लिया और माइनस दोनों का के लिया कॉमन, क्या आ गया? पी के बी प्लस क्या हो गया? लॉग सी, इसका पीएच का फॉर्मूला, सो फॉर्मूला फॉर द पीएच। तो यहां पे आपको के डब्ल्यू वैल्यू क्या? उसका 7 तो आ गया, खाली आपको क्या चाहिए? के बी चाहिए और क्या? सी, के बी और सी मिलेगा, आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? किसके लिए? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसके लिए आप क्या निकाल सकते हो? पीएच निकाल सकते हो, ये फॉर्मूलेशन, ओके? देखो NH4OH, सॉल्ट कौन सा लिया? NH4Cl, सॉल्ट इज मेड फ्रॉम द strong acid HCl and weak base NH4OH, okay? Weak part is a NH4 positive cation is undergo hydrolysis, so this hydrolysis is known as a cationic hydrolysis, okay? It's acidic in nature, H plus and यहाँ पे remains, right? NH4 react with the water, give NH4OH plus what is the H plus sign. Initial concentration C m 0, और क्या लिया? 0, water क्या लिया? excess, dash. Now when they reacted, minus CH will be what? AH will be undergo hydrolysis, so minus CH, CH और CH plus CH हो गया, जो उसके बाद at equilibrium C minus CH क्या बन गया? C ब्रैकेट 1 minus CH, और यहाँ पे क्या आएगा? CH और CH। उसके बाद लॉ ऑफ मास से अप्लाई किया केज के लिए, KH इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 OH into H plus साइन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4, तो आपको वहां पे KH इक्वल क्या मिला? CH स्क्वायर, सो H इक्वल रूट KH अपॉन C आ गया, KH इक्वल टू CS स्क्वायर, या KH इक्वल टू CS स्क्वायर, H इक्वल रूट KH अपॉन C, ये वैल्यू पुट किया, H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल क्या है? यहाँ पे CH है, H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आपको मिला रूट KH इंटू C, बट वी नो दैट KW इज इक्वल टू KH इंटू क्या है? KB, ये वैल्यू पुट किया यहाँ पे, KH KW अपॉन KB है, राइट? KW अपॉन KB, और इसका टेकिंग माइनस लॉग, क्या हमें निकालना क्या है? पीएच निकालना है, पीएच मींस नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ
H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिंप्लीफाई किया इसको, आंसर यहाँ तक आ गया। पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 14 है, उसका हाफ किया कितना हो गया 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी प्लस क्या हो गया log C। चलो लिख रहे ना तुम लोग। बनाओ, मिक्स करो दोनों को। एक क्या लेना है यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, क्या लेना है वीक एसिड लो। वीक एसिड कौन सा लिया है CH3 HCl लो, हाइड्रोजन साइनाइड चलेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस KOH लिया, KOH एल्सिन का रिएक्ट करो क्या बनेगा KCN, या CH3COONA भी चलेगा, सोडियम एसिडेट भी चलेगा। CH3CH3COONA। दिस इज सॉल्ट ऑफ, किससे बना हुआ है दिस सॉल्ट मेड अप ऑफ द CH3CH3COOH, ये कौन है वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें है कौन है NaOH, Na is a part of strong base and CH3COO minus is a part of the CH3COOH, ये कौन है weak acid, इससे weak acid और ये कौन है strong base। When CH3COONA is dissociated to form CH3COO minus and what is the Na plus, बनेगा बराबर ना, राइट ना। मीन CH3COO dissociate to form CH3COO minus plus what is the Na plus, ये रहेगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट, विच पार्ट विल बी अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इनका H2O के साथ रिएक्शन कराओगे प्लस H2O प्लस यहाँ पे H2O, दोनों में से कौन सा पार्ट रिएक्ट होगा CH3COO माइनस, राइट। मींस H2 के आयन कौन से हैं, आयन सब H2 और H प्लस, और ये क्या है OH माइनस है, H प्लस और क्या है OH माइनस है, राइट। This CH3COO minus react with the H plus ion to gives what is the CH3COOH। और दूसरा जो पार्ट बनेगा कौन सा OH और NaOH होगा, क्या बनेगा यहाँ पे NaOH, क्या बनेगा NaOH, लेकिन NaOH कैसा है स्ट्रॉन्ग है, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग है। अगेन डिसोशिएट टू फॉर्म Na प्लस एंड OH माइनस, वापस राइट, अगेन डिसोशिएट टू फॉर्म Na प्लस प्लस व्हाट इज द OH माइनस साइन, ये देगा। मीन इसका हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, दिस विल बी अंडरगो द हाइड्रोलिसिस। ओके समझा। मीन्स हियर which part anion or cation, anion, anion is undergo hydrolysis, so hydrolysis of CH3COO minus plus क्या लिखोगे H2O, it gives what CH3COOH plus OH minus n, means यहाँ पे नेगेटिव पार्ट, negative ion is undergo hydrolysis, so known as the anions, and OH minus ion remain there, that is why it is a basic in nature, क्या बनेगा basic in nature। initial reacted और क्या लिखेंगे अभी initial concentration क्या रहेगा, suppose C m dash, ये क्या बनेगा 0 और ये 0, राइट। नाउ रिएक्टेड
इन दे रिएक्टेड क्या होगा, ई पी एच इज हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सो माइनस यहाँ पे क्या होगा सी एच, यहाँ पे प्लस सी एच, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस सी एच, सेम. एट इक्विलिब्रियम सी माइनस क्या होगा सी एच, यहाँ पे सी एच, जीरो प्लस सी एच, जीरो प्लस क्या हो गया सी एच, तो सी एच ही आएगा. नाउ के एच इज इक्वल टू, के एच इज इक्वल टू, देखो के एच इज इक्वल टू, के एच मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर द, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, के एच है. सॉल्व कौन सा भी हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन CH3 COOH इंटू व्हाट इज OH माइनस है अपॉन, ये सर कौन है CH3 COO माइनस, क्या सॉल्ट हो सकता है, अपॉन सॉल्ट भी करेंगे तो भी चलेगा. CH3 चलो Na लिखेंगे तो भी चलेगा, वही रहेगा वो. KH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 चलो H, यहाँ पे कितना है CH, कितना CH इनटू अगेन OH माइनस साइन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो CH इनटू CH अपॉन C, ये क्या है C इन ब्रैकेट क्या है 1 माइनस H, C in bracket 1 minus what H, that is the KH is equal to C square S square upon C in bracket 1 minus H, that is KH is equal to CS square upon 1 minus H, 1 minus what H, but 1 minus H is a very value of H is a very less than 1, value of H is very less than 1. That's why 1 minus EH part nearly equal to क्या होगा 1, nearly equal to 1. So KH is equal to, KH is equal to बनेगा यहाँ पे CS square, that is EH square is equal to KH upon क्या बन गया C, therefore EH is equal to under root KH upon C, KH upon C. समझा यहां तक, सबको क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? देखो Yes, sir. ये है यहाँ पे सॉल्ट लिया आपने, जो सॉल्ट किससे बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से. वीकर पार्ट कौन है यहाँ पे CH3 स्लो माइनस साइन, दैट इज द एनाइन, अंडरगो हाइड्रोलिसिस बिकॉज स्ट्रॉन्ग पार्ट इज अगेन रिएक्ट विद द Na react with the OH minus and this should again form Na plus OH minus, complete dissociation होगा राइट. Na प्लस और क्या OH माइनस ही रहेगा, यानी कि NaOH फॉर्म होने वाला नहीं है. तो CH3 शुरू माइनस अंडरगो हाइड्रोलिसिस, उसके लिए हाइड्रोलिसिस लिखा, इनिशियल रिएक्टेड और क्या इक्विलिब्रियम राइट. उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके KH निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो KH इज इक्वल टू वहां पे वैल्यू पुट किया, आपको मिला KH इज इक्वल टू CS square, that is H is equal to H is equal to what root KH upon C. सिमिलर है, लास्ट जैसा ही है राइट, राइट ना. लास्ट में वहां पे KH निकाला था वो क्या था CS स्क्वायर था, यहाँ पे भी क्या है CS स्क्वायर है. व्हाट इज डिफरेंट देयर, सिमिलर तो मैंने बता दिया, अभी डिफरेंट क्या है. उसमें क्या था यस था, क्या था H, हम क्या बोले यहाँ पे क्या लिखा है मैंने pH, क्या लिखा है pH, यहाँ पे भी हमें क्या करना है pH डिफाइन करना है, लेकिन यहाँ से आपको H प्लस आयन तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा नहीं, आ रहा है क्या, देखो आ रहा है, देखो OH माइनस यहाँ पे, OH माइनस का कितना है CH है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा OH के लिए निकालना पड़ेगा. OH से हम pH पे जा सकते हैं ना, बिकॉज pH प्लस POH कितना होता है, या H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन कितना होता है, H प्लस इंटू OH माइनस आयन कितना है टोटल,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना है? वो 10⁻⁻14 है ये, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? KW बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KW। जब आपको OH मिला है तो H प्लस भी निकलेगा, OH माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, KW अपॉन OH माइनस क्या मिलेगा आपको? H प्लस मिलेगा, राइट? समझे? एक्सप्रेशन आपको किसका लिखना है? पीएच के लिए लिखना है, बाय यूजिंग OH, बाय यूजिंग OH। सी सो OH माइनस आयन, OH minus ion concentration is equal to OH minus ion concentration is equal to what? CH। क्या लिखा है यहाँ पे? CH is equal to CH। H का वैल्यू कितना है? रूट क्या है? KH अपॉन C दिया है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा रूट KH इंटू C। क्या मिलेगा? KH इंटू C, राइट? ये क्या आ गया? OH के लिए, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बट H plus ion concentration into OH minus ion concentration is equal to कितना है? KW। क्या ये? KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, बराबर ना? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। That's why H plus ion concentration is equal to, therefore H plus ion concentration is equal to क्या होगा? KW अपॉन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू KW रहेगा अपॉन इसका वैल्यू कितना? देखो, रूट KH इंटू रूट KH इंटू C। KH इज इक्वल टू, देखो KW इज इक्वल टू क्या आपके पास? KH इंटू क्या है? KA है, राइट? दैट्स व्हाई KH इज इक्वल टू KW अपॉन क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू पुट करो KH का। Therefore H plus ion concentration is equal to KW रहेगा अपॉन रूट KH का वैल्यू कितना है? KW अपॉन K इंटू C, राइट? अगेन देखो K यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और एक KW है यहाँ पे, KW है, रूट है, और ये एक कैंसिल होगा, रूट बचेगा, रूट मीन्स वी गेट हियर H plus ion concentration is equal to ऊपर क्या मिलेगा आपको? रूट KW इंटू KA, और अपॉन में क्या जाएगा? C। वहां पे C मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या है? अपॉन। ये डिफरेंस याद रखो, वहां पे K भी था, यहाँ पे क्या है? K है। K होगा तो मल्टीप्लाई, K भी होगा तो डिवाइड, समझे? और C वहां पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है? अपॉन। समझ में आ रहा है डिफरेंस? मिला H प्लस के बाद हमें pH पे जाना है, तो क्या करेंगे? टेकिंग नेगेटिव लॉग बेस 10। क्या करना है? टेकिंग नेगेटिव लॉग टू बेस 10, टेकिंग माइनस लॉग ऑफ बेस 10 on both sides. That's why minus log of base 10 H plus ion concentration is equal to माइनस क्या होगा यहाँ पे? हाफ, डायरेक्ट लिखता हूं, हाफ लॉग ऑफ, ब्रैकेट के अंदर कौन है? KW इंटू K अपॉन क्या है? C। सबका सेपरेट करिए, कौन है? pH है, ये कौन है? pH, जिसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन पूरा लिखा है। क्या है? pH इज इक्वल टू हाफ, माइनस में साथ देता, राइट? इन ब्रैकेट माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ K, बराबर, और ये अपॉन माइनस, और ये माइनस क्या होगा? प्लस लॉग C। ओके,
वैल्यू ऑफ दिस 14 या पी के डब्ल्यू को चलेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो गया पी के डब्ल्यू ओके माइनस माइनस मतलब प्लस होगा राइट तो नेगेटिव का वैल्यू पूरा क्या है पी के और ये प्लस क्या हो गया log c एच जीरो को इसका वैल्यू कितना है 14 बराबर ना माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू की वैल्यू क्या 10⁻⁻14 है -14 आगे आएगा तो माइनस के साथ क्या बनेगा प्लस log 10 कितना होता है 1 वैल्यू कितना आता है 14 अंदर मल्टीप्लाई करो हाफ ऑफ 14 वैल्यू पुट करो पहले प्लस पी के प्लस क्या हो गया log दैट इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ इसके लिए खाली ब्रैकेट आएगा पी के प्लस log c का फॉर्मूला किसका पीएच का सिर्फ फाइनल फॉर्मूला फॉर द पीएच निकाला पीएच यहां से भी आ गया अगेन पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वॉज स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल आप HCl लो चलेगा या CH3 लो या जनरल एग्जांपल लेंगे तो भी चलेगा जनरल एग्जांपल किसका BA का राइट लेकिन आपको उसमें मालूम होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है राइट यहाँ पे एग्जांपल क्यों लिया क्योंकि डायरेक्ट आपको पता लगे यहाँ पे वीक है और स्ट्रॉन्ग है ये वीक और एक है स्ट्रॉन्ग वीक पार्ट डिसोशिएट वीक पार्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग पार्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बिकॉज अगेन इट फॉर्म Na+ OH-। क्लियर है सबको नेक्स्ट इसका हाइड्रोलिसिस इनिशियल कांस्टेंट C है यहाँ पे 0 यहाँ पे क्या है 0 है when they reacted part what CH minus CH हो गया यहाँ पे प्लस CH यहाँ पे प्लस CH now at equilibrium कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा यहाँ पे C था C में से CH माइनस हो गया तो C minus CH मतलब C ब्रैकेट 1 minus H यहाँ पे CH यहाँ पे 0 plus CH यहाँ पे 0 plus CH KH निकाला KH इक्वल टू CH3 CH into OH minus साइन अपॉन CH3 CH माइनस CH अपॉन क्या लिया C ब्रैकेट 1 minus H C कैंसिल हो गया बच्चा आपको CH स्क्वायर अपॉन 1 minus H बट H वैल्यू H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज अ very less than the 1 that's why 1 minus H is approximately is equal to 1 so we got here KH is equal to CH square KH equal to CH square KH mean H is equal to H square is equal to KH upon C H is equal to I square is equal to KH upon C H is equal to root KH upon C इसका आ गया वैल्यू H का इक्वेशन से हम यहाँ पे फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट OH माइनस यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है CH इसलिए लिखा यहाँ पे OH माइनस साइन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू CH लास्ट वाले में क्या था H था इसलिए CH हो गया रूट KH अपॉन C मींस रूट KH इनटू C ये आ गया OH हमें H प्लस जाना है वी नो दैट H प्लस आयन इनटू OH माइनस साइन इज इक्वल टू व्हाट KW and a pot of water that's why H plus sign is equal to KW upon OH minus sign OH minus का वैल्यू पुट किया क्या है रूट KH upon C KH equal to what KW is equal to KH into K that is KH is equal to KW upon क्या है K ये तीन याद रखना KW के लिए देखो KW is equal to क्या है K into क्या है KH KW is equal to K into KB into क्या है KH और KW is equal to वीक एसिड वीक बेस के लिए K into KB into KH तीन एक्सप्रेशन सिंपल है सबके लिए KW सबके लिए क्या लिखना है KW समझा वीक एसिड है तो K वीक बेस है तो KB दोनों वीक है तो K into क्या होगा KB समझा ये लिखा इसे केज निकाला KW अपन क्या आ गया K ये वैल्यू यहां पे पुट किया राइट KW और ऊपर KW है ये रूट के अंदर नहीं है अपॉन रूट है एक कैंसिल होगा बचेगा KW जो अपॉन के ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई तो KW इंटू क्या होगा अपॉन क्या होगा
एसिड वाले में वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड जहां पे वहां पे मल्टीप्लाई सी होता है, राइट। ये आ गया, इसको क्या लिया, निगेटिव लॉग बेस 10, निगेटिव लॉग बेस 10, सिंपलीफाई किया, ये हो गया पीएच, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया आपको लॉग KW माइनस लॉग के ए प्लस लॉग सी, इसका वैल्यू खाली पुट करना है, बाकी सिंपलीफाई करके आंसर लिखना। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सब लोग सॉल्ट ऑफ pH ऑफ salt of weak acid and weak base, बोलो एग्जाम्पल कोई भी एक। Salt of weak acid, weak base, let salt of weak acid and weak base, कोई भी ले सकते हो, या BA भी लेंगे तो भी चलेगा उसको जनरली, एग्जाम्पल कोई भी चलेगा, CH3 COO NH4 चलेगा, बराबर। इसमें क्या है, CH3 COOH और कौन है, NH4OH। CH3 चलो माइनस और NH4 का प्लस, कैटायन है, दोनों है, वो दोनों CH3 चलो और क्या NH4 प्लस, दोनों क्या है, वीक है, राइट। जो वीक पार्ट है, वीक पार्ट CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस और NH4 प्लस, बोथ आर वीक, अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्ट विद वाटर, यहाँ पे भी वाटर, तो क्या बनाएंगे, CH3 COOH और इससे बनेगा NH4OH। दोनों भी जो mean cation and both are here react with the water to give the parent acid and bases, right। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस लिखना है। तो लास्ट दो क्वेश्चन, वीक एसिड होगा तो वहां पे वीक पार्ट लिया, वीक बेस के लिए वीक पार्ट, वीक बेस लिया, उसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस। हमें दोनों भी है, मीन्स CH3 COO माइनस भी है, CH3 COO माइनस प्लस NH4 प्लस, प्लस क्या लिए H2 और बन रहा है क्या, क्या बन रहा है, CH3 COOH प्लस क्या हो रहा है, NH4OH, इनिशियल यहां पे लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, CM, ये भी होगा CM, ये डैश, ये 0 और ये 0, रिएक्टेड ये कितना होगा, माइनस CH, जहां पे H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे माइनस CH, यहाँ पे CH प्लस CH और ये प्लस CH। नाउ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, concentration at equilibrium, C माइनस CH मतलब C इन ब्रैकेट 1 माइनस CH, ओके, यहाँ पे भी C इन ब्रैकेट 1 माइनस CH, यहाँ पे 0 प्लस CH मतलब CH, यहाँ पे भी 0 प्लस CH इज CH, समझा। अब क्या निकालेंगे, KH, क्या निकालना है, KH, KH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, CH3 COOH, CH3 COOH into concentration of NH4OH,
अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 minus into NH4 प्लस, दोनों भी रहेगा यहाँ पे। दैट इज KH इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो यहाँ, CH into CH अपॉन C ब्रैकेट 1 minus H, C ब्रैकेट 1 minus H। क्लियर है? देखो वैल्यू पुट किया सबका यहाँ से, ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट किया। सिंप्लीफाई करो, KH is equal to C cancel, again C cancel, remaining what is the H square upon 1 minus CH bracket square, right? जहाँ पे H क्या है? H is very less than 1. H is very less than 1. Therefore 1 minus CH nearly equal to what? 1. That's why we get KH is equal to H square. समझा यहाँ पे? यहाँ तो सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. This shows that KH value is not depends upon concentration, C के ऊपर डिपेंड्स नहीं है, only depends upon H हाइड्रोलिसिस। H इज इक्वल क्या होगा यहाँ पे? H इज इक्वल टू रूट KH, रूट KH। इसका बढ़ समझ में आया सबको यहाँ तक? देखो इसके आगे अभी नेक्स्ट पार्ट, जो आगे का पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको CH, यहाँ पे नाइदर H प्लस है नाइदर OH माइनस, नॉर OH माइनस, H प्लस भी नहीं है OH माइनस भी नहीं है, तो आप H प्लस PH कैसा निकालोगे? राइट ना? हाउ टू फाइंड द pH? pH तो निकालना है ना, ऊपर लिखा है हमने pH, एक्सप्रेशन pH का ही है। सर स्ट्रॉन्ग एसिड था, सॉरी वीक एसिड, वीक बेस के लिए था वहां पे, तो pH और POH से क्या निकाला? OH माइनस से क्या निकाला? H प्लस से क्या निकाला? pH निकाला, राइट? दोनों में। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे H प्लस भी नहीं है, OH माइनस भी नहीं, H प्लस या OH दोनों में से कोई एक रहेगा तो वहां पे हम pH निकाल सकते हैं, राइट? यहाँ पे दोनों भी नहीं। तो क्या करें? क्या कर सकते हैं? चलो देखो यहाँ पे दोनों में से एक पार्ट, CH3 श्लो माइनस या NH4 प्लस, एक का रिएक्शन किसका कराएंगे? H2 के साथ। CH3 श्लो माइनस का करो या NH4 प्लस का करो। जब NH4 प्लस का कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? NH4OH मिलेगा, और क्या बचेगा? H प्लस आयन बचेगा। क्या बचेगा? H प्लस आयन। मतलब वहां पे क्या बच रहा है? H प्लस आयन। या CH3 श्लो माइनस इंटू H2 करेंगे, प्लस H2 करेंगे तो मिलेगा आपको CH3 श्लो H और मिलेगा आपको OH माइनस। हमें निकालना है pH। क्या निकालना है? pH। तो pH निकालने विच विच इजियर, H प्लस आयन से इजियर है या OH माइनस है? H प्लस आयन से। जहां पे H प्लस आयन बच रहा है वो लेंगे, राइट? मींस क्या करेंगे अभी? NH4 प्लस NH4 प्लस H2O बनाएगा यहाँ पे NH4OH, NH4OH प्लस H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो। यहाँ पे H प्लस लिखेंगे तो भी चलेगा या H3O प्लस लिखेंगे तो भी चलेगा। कभी कभी आपको यहाँ पे H3O प्लस भी लिखेंगे, हाइड्रोनियम आयन से। यहाँ पे क्या C है, तो क्या बनेगा? ये 0 और ये 0 0। ये H यहाँ पे डैश, सॉरी CH माइनस CH प्लस क्या होगा? CH प्लस CH। आपको आ गया H प्लस साइन। यहाँ पे H प्लस साइन क्या है? H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? CH। क्या है? CH, राइट?
Therefore, H plus ion concentration is equal to CH, जहां पे आपको H मिला है, H is equal to अंडर रूट H, क्या आ गया, अंडर रूट KH, बराबर है, अंडर रूट KH. For salt of weak acid and weak base, for salt of weak acid plus weak base Kw is equal to Ka into Kb into क्या था, KH. That's why KH is equal to क्या बनेगा, Kw अपॉन K into क्या बनेगा, Kb रहेगा ना, ये आएगा, KH की वैल्यू आ गया, KH की वैल्यू ऊपर पुट करो. We should get here, देखो H plus ion concentration is equal to C into root KH. रूट क्या है, KH means KW upon K into KB, KW upon K into what is the KB. The H plus ion concentration, taking what, taking negative log of base 10, that is a minus log of base 10 of H plus ion concentration is equal to minus log of base 10 into कौन है, C, क्या है, C रूट KW अपॉन KA इंटू क्या है, KB, राइट, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, PH माइनस लॉग ऑफ बेस 10 C, यहाँ पे सेपरेट करो, माइनस लॉग ऑफ हाफ लॉग ऑफ ब्रैकेट में KW अपॉन K इंटू क्या बनेगा, KB, राइट, इज इक्वल टू माइनस लॉग C, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस हाफ ब्रैकेट लॉग KW माइनस लॉग KA माइनस लॉग KB. ओके, तीनों का सेपरेट लिया, माइनस साइन अंदर देंगे तो क्या होगा, देखो माइनस लॉग ऑफ लॉग C माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ करो, अंदर माइनस साइन दो, माइनस लॉग KW माइनस इन ब्रैकेट माइनस लॉग लिखो K माइनस इन ब्रैकेट माइनस लॉग KB. ओके, ये कौन है, PKW, ये कौन है, PKA, ये कौन है, PKB, इज इक्वल टू माइनस लॉग C प्लस हाफ इन ब्रैकेट, ये क्या हो गया, PK माइनस माइनस ही रहने दो, इसका वैल्यू कितना है, PKA माइनस PKB ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस वाला लो आगे लो, हाफ ऑफ PKW माइनस PKA माइनस PKB माइनस लॉग, ये क्या आ गया, PH, किसके लिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसके लिए क्या आ गया, PH, राइट. यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, PKW का कितना है, 14, राइट. तो बाद में एग्जांपल्स आओ वहां पे करेंगे चलेगा, या यहाँ पे करके रखें तो भी चलेगा. देखो क्या किया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस लिया, उसका रिएक्शन करवा दिया, उससे क्या निकाला, KH. लेकिन यहाँ पे C नहीं आ रहा है, ओनली KH इज इक्वल क्या आ रहा है, H स्क्वायर, C नहीं है, H इज इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट KH, और H प्लस नहीं है, OH माइनस नहीं है, इसलिए क्या किया, रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, कोई भी एक एनाइन का करो या कैटाइन का करो, मोस्टली हम क्या करेंगे, माइनस वाले का, NH4 प्लस वाले का, किसका, प्लस, क्योंकि प्लस वाला OH लेगा, H प्लस बचेगा, जो क्या है यहाँ पे CH, OCH लेके क्या निकाला, H प्लस C इंटू रूट क्या है, KH.
उससे KH का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, K इंटू KW अपॉन K इंटू क्या KB, उसका क्या लिया नेगेटिव लॉग और सॉल्व किया। बस लॉग समझ में आया सबको? तो क्या किया, NH4 प्लस पॉजिटिव आयन दैट इज H2O फॉर्म में NH4OH प्लस और H प्लस है, हमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो वीक एसिड का K अप्लाई किया, K इज इक्वल टू NH4OH इंटू H प्लस अपॉन NH4 प्लस, वैल्यू पुट करके आपको क्या मिला यहाँ पे, K इज इक्वल टू H इंटू H प्लस, दैट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K अपॉन H। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा, ये वाला, H इक्वल क्या है रूट KH, H is equal to root KH. Therefore, H plus ion concentration is equal to Km into या upon root KH. अब KH का वैल्यू क्या है, but KW is equal to K into KB into क्या है KH, right? That's why KH is equal to KH is equal to KW अपॉन क्या होगा KA इंटू क्या KB। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, therefore H plus ion concentration is equal to K रख दो अपॉन रूट KH, रूट कौन है यहाँ पे KW है अपॉन K है इंटू क्या है KB। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो KW K और K, यहाँ पे भी K, यहाँ पे भी क्या है K, कैंसिल नहीं हो रहा, वो भी कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो हमने रॉन्ग लिखा है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब वाले रिएक्शन लो इसका बस H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ से लेना है, देखो CH3 चलो माइनस H2O, इसका कितना NH4 प्लस का C है, CH3 चलो इसका कितना है CH है, NH4OH का कितना है CH है, CH3 चलो माइनस का क्या है C है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या आ रहा है, देखो C ब्रैकेट 1 माइनस H, C ब्रैकेट 1 माइनस H और CH और क्या CH, यहाँ पे इसका चाहिए, देखो इक्वेशन में यहाँ पे आपको जरूरत है K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH कितना है CH है, क्या है CH, तो यहाँ पे CH लिख देना, इसका नहीं है इंटू क्या लिखा H प्लस है अपॉन NH4 प्लस का, देखो NH4 प्लस का कितना है C ब्रैकेट 1 माइनस H, C ब्रैकेट 1 माइनस H, यहाँ पे C और C क्या होगा कैंसल, H प्लस अभी भी कुछ तो स्टार्ट कर दिया, KH निकला यहाँ पे, KH इक्वल टू क्या रूट KH आ गया, लेकिन यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या एसिड रिएक्ट विद वाटर, जैसा कि H प्लस चाहिए तो क्या लिया एसिड लिया, वीक एसिड कौन है यहाँ पे CH3COOH रिएक्ट विद वाटर H2O गिव्स क्या मिलेगा आपको यहाँ पे CH3COO नहीं H प्लस आयन मिलने चाहिए ना आपको, हाँ बराबर, माइनस और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे H3O प्लस, बराबर क्या मिला H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम आयन आ गया, मतलब H प्लस आयन, समझा। CH3 चलो माइनस और क्या आ गया H3O प्लस, K वीक एसिड है ना, K का इक्वेशन है ना लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट K के लिए, ओके अप्लाई करो, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस
अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOH। अब यहाँ पे वैल्यू जो इनका है वो ए टेबल से पुट करो। देखो CH3 माइनस का क्या है, सी ब्रैकेट 1 CH, इसका कितना है CH। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो। CH3 माइनस क्या है, सी ब्रैकेट 1 CH, इसका हमें फाइंड करना है H3O प्लस अपॉन इसका कितना है CH है, राइट। अब देखो C और C क्या हो गया, कट हो गया, C और C कट, देयरफॉर K इंटू क्या आ गया H इज इक्वल टू 1 CH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, या ये अपॉन में लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, 1 CH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। ओके, 1 CH नियरली इक्वल टू क्या लिखना है 1, देयरफॉर H3O प्लस इज इक्वल टू क्या मिला आपको K इंटू H। अब वैल्यू पुट करो, K क्या है, ये आपको मिला यहाँ पे H इक्वल टू रूट KH है, H इज इक्वल टू रूट KH। यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसका, H इज इक्वल टू क्या है रूट KH, देयरफॉर H3O प्लस इज इक्वल टू K यहाँ पे है इंटू H, K A इंटू क्या होगा रूट KH। बट we know that KW is equal to K इंटू KB इंटू क्या है KH, इससे वैल्यू किसका निकालना भी KH। देयरफॉर KH is equal to KW अपॉन क्या मिलेगा K इंटू क्या मिलेगा KB, K इंटू KB। अब आएगा देखो H3O प्लस इज इक्वल टू K रहेगा, इसका वैल्यू रूट के अंदर KW अपॉन क्या रहा है K इंटू क्या हो गया KB, राइट। अब देखो K क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू एक K कैंसिल होगा, रूट के अंदर बचेगा K इंटू KW अपॉन KB। मतलब यहाँ पे आपको C आने वाला नहीं है, राइट, दिस नॉट डिपेंड्स अपॉन द C, पहले प्रूव हो गया है, तो यहाँ पे भी C आएगा नहीं। समझा यहाँ तक? देखो अगेन CH3H रेट दो H2O, एसिड रेट दो वाटर, या यहाँ पे बेस भी लेंगे तो भी चलेगा, बेस लेंगे तो आपको यहाँ पे OH माइनस आई मिलेगा, राइट। एसिड लेंगे तो आपको H प्लस आई मिलेगा। Dissociation of the CH3H form negative and positive ion, that is the minus sign, what is the H plus ion। H plus ion का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, राइट, इसलिए लॉ ऑफ मास से अप्लाई करके K निकाला, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। K इज इक्वल टू व्हाट CH3 माइनस और क्या आ गया H2, H3O प्लस या H प्लस लिख सकते हो। वैल्यू पुट किया किसका, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू पुट फ्रॉम हियर, जो CH3 माइनस का कितना है C ब्रैकेट 1 CH और CH3COH का कितना है CH है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया दोनों, समझा, ये दो वैल्यू पुट किया, ये CH है, ये एक C कैंसिल हो गया, बचा आपको KH, K इंटू H अपॉन 1 माइनस H विच इज नियरली इक्वल टू व्हाट 1। सो आपको मिला H3O प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू K इंटू क्या आ गया H। फिर सॉल्व किया, KH का वैल्यू पुट किया, आपको इक्वेशन मिला H3O प्लस इज इक्वल टू रूट K इंटू क्या मिला KW अपॉन K, राइट, इतना। अब इसके आगे क्या करना है, नेगेटिव लॉग बेस 10 लेना है आपको, बस टेकिंग व्हाट नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10, नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑन बोथ साइड, देयरफॉर माइनस लॉग ऑफ कौन है H3O प्लस या H3O प्लस लिखो या H प्लस साइन लिखो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ लॉग
ब्रैकेट में कौन लिखेंगे, के डब्ल्यू और क्या के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी। देयरफॉर ये हो गया पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ इन ब्रैकेट माइनस लॉग, पहले के डब्ल्यू लो, प्लस सॉरी माइनस लॉग कौन है के, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, या माइनस अंदर माइनस लिखो, लॉग ऑफ के बी। पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक पी के डब्ल्यू माइनस प्लस पी के, और ये माइनस पी के बी। ओके, इसका वैल्यू कितना 14 है, हाफ ऑफ 14 प्लस पी के माइनस पी के बी, क्या आ गया, दैट इज 7 प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस पी। जो दोनों इक्वल होंगे तो इफ के एंड के बी आर इक्वल, ये क्या होगा 0, मतलब कितना आएगा, पीएच कितना आएगा 7। इफ पी के इज इक्वल टू पी के बी, देयरफॉर पीएच इज इक्वल कितना बनेगा 7। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन क्या होगा न्यूट्रल। इफ पी के इज वैल्यू इज ग्रेटर देन पी के वैल्यू ग्रेटर देन व्हाट इज पी के बी, तो आंसर क्या होगा 7 से प्लस आएगा। 7 से प्लस मतलब क्या हो गया बेसिक, पीएच जिसका 7 से ज्यादा है वो क्या होगा बेसिक, और ये वैल्यू ग्रेटर है, आंसर 7 में से माइनस होगा, राइट 7 में से माइनस, तो क्या बनेगा एसिडिक बनेगा, राइट। ये सही है, नोट डाउन करना। नाउ हियर हम स्टडी किया स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट के नेम, सॉल्ट कौन से थे, पहला सॉल्ट कौन सा था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। नेक्स्ट सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके लिए था। और थर्ड जो था कौन सा, वीक एसिड प्लस वीक बेस। यहाँ पे इसका केएच क्या था, केएच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, व्हाट इज सी स्क्वायर। यहाँ पे भी केएच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे केएच इज इक्वल टू क्या था ए स्क्वायर, राइट। या एच इज इक्वल टू और एच इज इक्वल रूट क्या था के एच अपॉन सी, यहाँ पे भी सेम एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच अपॉन सी, यहाँ पे एच इज इक्वल टू रूट के एच। ओके, नेक्स्ट एच प्लस साइन कॉन्सोनेशन, सॉरी के डब्ल्यू इज इक्वल टू के डब्ल्यू जो क्या था यहाँ पे के एच इंटू के बी, मीन्स के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन क्या मिला आपको, राइट। यहाँ पे के डब्ल्यू इज इक्वल टू के एच इंटू, वीक कौन है यहाँ पे एसिड, वो याद रखें, वीक जो रहेगा उसका के बी, के और के बी, वीक एसिड तो के आ गया, वीक बेस से तो क्या आ गया के बी आ गया, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के।
और इसके लिए के डब्ल्यू इज इक्वल टू के ए के बी इंटू के एच, दैट इज के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, के इंटू के बी। क्लियर? नेक्स्ट, H plus ion concentration. H plus ion concentration is equal to under root KH into C upon KB, right? यही है? तो कौन सा फॉर्मूला बोल रहे? KW इंटू सी, KW इंटू सी अपॉन KB, बराबर। यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट KW इंटू KA अपॉन C, राइट। लेकिन यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट, KW इंटू KA अपॉन KB, राइट। उसके बाद पीएच के लिए फॉर्मूला क्या है? 7 माइनस हाफ ऑफ, देखो ना यहाँ पे कौन है, हाफ ऑफ क्या रहेगा? पी के बी प्लस लॉग सी। यहाँ पे पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के प्लस लॉग सी, राइट। और यहाँ पे पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के बी, राइट। ये फॉर्मेशन पूरा हाइड्रोलाइसिस समरी यहाँ पे। KH और HH, KW के लिए तीनों का, KH तीनों का, H प्लस साइन तीनों का आ गया, यहाँ पे PH, राइट। फटाफट पेज पे नोट डाउन करो, उसके बाद एग्जाम्पल करें। प्रॉब्लम ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो, कैलकुलेट द H3O plus means concentration of H3O plus and pH of 0.1 m solution of NH4Cl. Kb for NH3 is 1.8 into 10 raised to minus 5. पहले गिवन क्या देखो, गिवन यहाँ पे गिवन वैल्यूज क्या दिया है यहाँ पे? pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? इज इक्वल टू 0.1 m। और क्या दिया है? Kb फॉर NH3, Kb इज इक्वल टू कितना दिया? 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 दिया है, राइट। NH4Cl है, सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, NH4Cl NH4Cl ये किससे बना हुआ है? NH4OH और HCl से बना हुआ है, राइट, जो आपने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था। ये कौन है? ये कौन है? वीक बेस। क्या है? वीक बेस है। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो सॉल्ट जो है वो किससे बना हुआ है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में देखेंगे आप, NH4 प्लस पॉजिटिव क्या होता है? NH4 प्लस है और Cl माइनस है। किसका हाइड्रोलिसिस होता है? NH4 प्लस का। NH4 प्लस विल बी अंडरगो द हाइड्रोलिसिस। जो NH4 प्लस H2 इसका हाइड्रोलिसिस होके क्या बनाएगा यहाँ पे? NH4OH और क्या बन रहा है?
H प्लस। तो इससे आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा है, H प्लस साइन मिल रहा है। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना 0.1, सॉल्यूशन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.1 डैश, और ये कितना होगा 0.0, राइट। When they react as H is the degree of hydrolysis, तो एट इक्वली ए क्या हो गया इनिशियल, क्या हो गया इनिशियल। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा 0.1 माइनस 0.1 इंटू एच, गेटिंग इट। जहां पे सी था तो सी माइनस क्या था, सी एच था, तो ये क्या होगा यहाँ पे 0.1 एच, और ये क्या होगा 0.1 एच। क्लियर। अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, KH is equal to 0.1 H into 0.1 H upon 0.1 in bracket 1 minus H, that is equal to 0.1 एक कैंसिल होगा, एक 0.1 बचेगा, इंटू क्या होगा एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, यहाँ पे 1 माइनस एच नहीं है, 1, सो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 0.1 एच स्क्वायर, 0.1 एच स्क्वायर, दैट इज KH। ये आपको आ गया KH इज इक्वल टू, यू कैन राइट दी 0.1 एच स्क्वायर, या इसको आप कर सकते हो एच स्क्वायर अपॉन कितना 10, चलेगा। एच स्क्वायर अपॉन 10 भी लिख सकते हो, एच स्क्वायर अपॉन 10, सब कुछ चलेगा। नाउ KH कौन है ये, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका रिलेशन KH के लिए अभी दिया था ना, KH इज इक्वल, बट KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, KW अपॉन KB। सो KH प्लस लिखो KW अपॉन KB इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 10, KW कितना होता है 10⁻⁻14, कितना होता है 10⁻⁻14, KB दिया है, KB कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 10। इफ यू सिंप्लीफाई 1.8 10 है यहाँ पे, 10 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10⁻⁻13 बचेगा, मींस एच स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ये 10⁻5 और ये 14 कितना हो गया -9, -9 से 10 एक और आएगा तो कितना होगा 8 -8 बराबर, मींस 10⁻⁻8 अपॉन 1.8 बराबर है। देखो चेक करो 10 मतलब ये 1 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा मतलब 10⁻1, 10⁻⁻14 और 10⁻1 कितना हो गया 10⁻13, उसमें से -5 कैंसिल हो गए, बचेंगे 8, दैट इज यू कैन राइट दिस एज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू क्या लिखा 10⁻⁻10 होगा और बढ़ेंगे 100 मतलब 10⁻2 अपॉन 1.8 क्यों किया ऐसा, क्योंकि एच का वैल्यू मुझे निकालना है यहाँ पे, इसका वैल्यू एच का, इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 18 फाइजा 18 फाइजा 18 फाइजा 18 फाइजा, सब फाइजा आएंगे राइट, डेसिमल निकाल दो, चाहे तो ये 100 है उसका 1000 कर दो अपॉन 18, 18 फाइजा 90, 10 रिमेनिंग, 18 फाइजा 90, 18 फाइजा 90, यही आएगा ना हर बार, मतलब कितना आएगा 55.5, 55.5 लिखो या 56 लिखो तो भी चलेगा, इंटू 10 कितना आ गया -10, इसका मुझे क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर रूट, ये आपको डेसिमल नहीं चाहिए, पूरा का पूरा नंबर आपको क्या चाहिए, पूरा नंबर होल नंबर चाहिए, तो और 10 है वहां पे क्या करना पड़ेगा 12, ये आपको और एक डेसिमल आगे चाहिए तो भी कर सकते हैं। H इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 55.56 इंटू 10⁻10 का कितना होगा 10⁻⁻, का स्क्वायर रूट डायरेक्ट आएगा,
लेकिन इसका स्क्वायर रूट आएगा नहीं, समझे। और इसका स्क्वायर रूट आप लॉग से या अनलॉग से कर सकते हो, ये डायरेक्ट निकाल डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्टली क्या देखना है यहाँ पे आपको, आंसर ये क्या है 55.55 है, राइट। 55 नंबर है, 55 मीन्स इज ग्रेटर देन 36 ना। कितना था 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 36, 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर कितना होता है, मतलब 49 और 64 के बीच में, तो आएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू 7 आएगा, और ये यहाँ पे 5 आ रहा है मतलब 5 आएगा, लास्ट में क्या है 5, 7.5 का स्क्वायर कितना देखो 7 8 56.25 आ रहा है, बराबर। इसका 55.56 थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, 5 के बदले वहां पे 5 3 5 2 5 ऐसा आ सकता है, इंटू 10⁻⁻⁵। ये क्या आ गया h, h इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁵। h प्लस क्या निकालना है आपको ph, ओके। अभी h प्लस के लिए फॉर्मूला क्या है, रूट तो हमने ये निकाल क्या नहीं, h प्लस के फॉर्मूले क्या है, h प्लस के लिए रूट ये फॉर्मूला ना सी तो हाँ ये सी आ गया, इसका ये क्या आ गया हाइड्रोलिस आ गया ये एच, राइट। कंसंट्रेशन सी, एच प्लस आइन का कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 0.1 इंटू एच, 0.1 इंटू एच इज इक्वल टू 0.1 इंटू वैल्यू ऑफ एच कितना आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁵, दैट इज इक्वल टू डेसिमल है हटाने का है, तो यहाँ पे रेज टू 7.5 इंटू क्या हो गया 10⁻⁻, और एक बढ़ गया मतलब 10⁻⁻�6, राइट। ये आ गया 7.5 इंटू क्या आएगा एच प्लस आयन, निकाला अभी पीएच, पीएच के फॉर्मूले का देखो, पीएच इज इक्वल टू ये भी कैसा निगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ द एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, क्योंकि एच प्लस मिल गया ना आपको, एच प्लस आयन का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली आ रहा है, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना आ रहा है यहाँ पे 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶, 7.5 इंटू कितना आ रहा है 10⁻⁻�6, ओके, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 7.5 और ये माइनस प्लस अंदर है, राइट, तो माइनस होगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁶, दोनों को सेपरेट कर दिया, राइट, इज इक्वल इसका ही लॉग देखना आपको, माइनस लॉग ऑफ 7.5 का, जहां पे 70 पे कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया, 75 का 0 देखो 38751, और ये माइनस और माइनस क्या बनेगा प्लस 6 लॉग 10 10 तो 1 हो गया, इज इक्वल टू माइनस से माइनस को प्लस करना है, राइट, देखो माइनस और ये है माइनस का सॉरी प्लस 6 माइनस 0.8751, समझ में आ रहा है, 6 क्या हो गया प्लस हो गया, राइट, तो ये डायरेक्टली माइनस होगा, 6 माइनस यानी कि 9 9 5 4 9 7 2 9 8 इज 1 और ये 5 कितना आ गया 5.1249, इसका पीएच जो है पीएच कितना आएगा पीएच इज इक्वल टू 5.1249 या 12 लिखो,
या 5.1 लिखो तो भी चलेगा। ओके, pH इक्वल 5. देखो ये सॉल्यूशन कैसा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, क्या बच रहा है यहाँ पे H प्लस बच रहा है ना, एसिडिक है। pH कितना रहा है 5.1, इसका मतलब 7 से कम है, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसका H प्लस साइन कांस्टेंट कितना रहा है 7.5, सॉरी यहाँ पे 7.5 इंटू 10⁻⁻6 है। यही पे ये एसिडिक है, और उसका pH भी कितना देखो 5.1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक है। कैलकुलेट H3O प्लस और क्या pH। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है फॉर्मूला, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट KW इंटू C अपॉन KB। ओके, KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 इंटू C 0.1 अपॉन KB कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू रूट -5 10 14 हो गया 15 5 10, राइट राइट ना, 1 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.8 is equal to 10⁻⁻5 upon root 1.8 is equal to 1 अपॉन, इसका लॉग देखें 10⁻⁻5 लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ रूट 1.8 माइनस रूट लॉग अपॉन में ना, अपॉन में तो माइनस से होगा, एक मिनट, हाँ इसका भी लेना पड़ेगा, दोनों का लेते चलिए। एंटी लॉग ऑफ 10⁻⁻5 माइनस हाफ लॉग 1.8, चलिए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -5 माइनस हाफ क्या डिश इसका 0.18 का 0, देखो 18 का 0 2553 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -5 माइनस 0.1 2 to the 4 2 7 the 14 2 6 the 12, राइट, कैंसिल किया, इज इक्वल टू -5 एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग देखते समय पूरा ये मेंटेस जो आपका पूरा क्या हो गया, निगेटिव बन गया, राइट, बराबर ना, क्या हो गया निगेटिव, लेकिन एंटी लॉग के लिए निगेटिव मेंटेशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए पॉजिटिव, इसलिए ये बार 6 हो गया, +1 माइनस 0.1276 से सब्सट्रैक्ट होगा, मीन्स एंटी लॉग ऑफ बार 6 पॉइंट जो भी आंसर आएगा 1064 972 927 918 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 87 का 24, देखो एंटी लॉग में देखो 87 का 24 चेक करो कितना 7.57 हाँ 7454, देखो अभी डेसिमल देना है, एक प्लेट सर्कुलर डेसिमल दिया इंटू 10 कितना है, यही आंसर है 7.5 है, लिखा ना वहां पे, ये आंसर था, ये आ गया आपका क्या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी जो फॉर्मूला दिया वही फॉर्मूला इसके लिए pH के लिए अप्लाई करो, pH इज इक्वल टू -7 माइनस हाफ ऑफ PKB प्लस लॉग C, ओके
देखो इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी। पी के बी कितना आएगा यहाँ पे, कितना है पी के बी, मतलब नेगेट लॉग ऑफ पी के बी, मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 के बी, राइट ना, प्लस लॉग सी एट इज इक्वल टू 7 माइनस अंदर देंगे तो प्लस बाहर 1/2, ये माइनस बनेगा प्लस होगा, राइट। लॉग ऑफ लॉग के बी माइनस लॉग सी, के बी कितना है 7 प्लस हाफ, के बी कितना है 1.8, लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5 माइनस लॉग सी 0.1। वापस यहाँ पे यहाँ पे लिख दो सीधा 10 कितना -1 चलेगा। 7 प्लस हाफ लॉग 1.8 log 1.8 प्लस log 10⁻⁵ माइनस log 10⁻⁻ इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ log 1.8 कितना आ रहा था, यहाँ पे आता कितना 2553 0.2553 प्लस ये कितना हो गया -5 और ये माइनस प्लस 1 7 प्लस हाफ ऑफ 5 4 कितना हो गया 4 ना, -4 प्लस 0.2553 इसको सब्सट्रैक्ट करो कितना देखो 7 प्लस निगेटिव कितना होगा 7 4 4 7 3 माइनस पूरा आंसर माइनस मीन्स इज इक्वल टू 7 माइनस कितना हो रहा है 2 1 जा 2 2 8 जा 16 17 है 2 7 जा कितना होगा 14 2 2 जा 4 2 2 1 जा यहाँ पे आएगा 1 2 8 जा 16 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 3 जा 6 अब माइनस करो बराबर नहीं है 10 माइनस 3 7 7 2 1 और यहाँ पे 6 माइनस 1 5 आ रहा है वही डिफरेंस जो 7.4 यहाँ पे आ रहा था ना, देखो 7.5 हमने अप्रोक्सीमेट लिया था, लेकिन लॉग से लेके तो आपको यही मिलेगा। और वैल्यू 5 पॉइंट कितना रहा 1.512 ठीक आ रहा है, पीएच आ रहा है, मतलब अब ओ फॉर्मूले से करो या यहाँ पे करो आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। दिखाने का था मुझे क्या कि फॉर्मूले से करो या ओ एक्सप्रेशन से करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा सेम मिलेगा। तो मोस्टली अभी और एक देखो यहाँ पे आपको जब एच प्लस आया आ गया ना तो आपको ये बड़ा लंबा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, समझे क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बेस 10 H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन हो गया यहाँ पे खाने का तुम समझे क्या, जो सुटेबल रहेगा वो यूज करना है। तो यही आंसर आया था।
7.5 10⁻⁻⁶ नेगेटिव लॉग किया। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या है? 100 ml ऑफ 0.2 m मोलर ऑफ NaOH एंड 100 ml ऑफ 0.2 मोलर ऑफ CH3COH। के उसके लिए है, के किसका? एसिटिक एसिड का के कितना? 1.8 × 10⁻⁵ इज गिवन, राइट। दो, एक तो ये सॉल्ट बना है, सॉल्ट किससे बना हुआ है? यूरिक एसिड और क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच हो या H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो, तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले सी चाहिए। क्या चाहिए? सी, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। KW तो आपको पता है, के दिया है, KW नोन, के दिया है, क्या चाहिए? सी चाहिए। सी कॉन्सेंट्रेशन निकालना, राइट। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको पहले 100 ml, वो भी कितना? 100 ml, दोनों 100 ml, पूरा टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? अभी 200 ml। ये 1 मोल है, वो भी 1 मोल, और बनेगा जो बनाने वाला सॉल्ट भी है वो भी कितना होगा? 1 मोल बनेगा, राइट ना। रिएक्शन में देखो, 100 ml of 0.2 m NaOH react with 100 ml of 0.2 m CH3COH, राइट। एसिडिक एसिड और क्या हो गया? बेस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। 100 ml, वो भी क्या? 100 ml, राइट। टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का यहाँ पे पकड़ो, कितना हो गया? 200 ml। के कितना दिया है? 1.8 × 10⁻⁻⁵। कैलकुलेट, क्या फाइंड करना है? पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। जो दोनों मिक्सिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या निकालना है? पीएच। तो पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये फॉर्मूला है पक्का। तो हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C, राइट ना। किसके लिए? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया ना, log प्लस log C है, प्लस log C। So to calculate the pH, we need what? C, concentration of the salt. सोडियम एसिडेट का क्या चाहिए आपको? C चाहिए। So we first calculate that. Let us consider number of moles of NaOH and CH3COH solution. Number of moles of NaOH and C चाहिए। C का फॉर्मूला क्या है? Concentration is equal to number of moles upon volume. वॉल्यूम आपको मिल गया, कितना हो गया? 200। भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, C into what is the V, concentration into क्या होगा? वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.2, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 100। तो ये किसका आ गया? NaOH का आ गया, कितना? 20 मिलीमोल्स। 20 मिलीमोल्स, बराबर ना। मल्टीप्लाई करके देखो कितना। वैसा सेम किसके लिए निकाला? एसिडिक एसिड के लिए। वो कितना है? 0.2 है, वो भी सेम आएगा, कितना? 20 मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड। निकालना है किसका है? एसिडिक, सोडियम एसिडेट का। सोडियम एसिड याद रखो। ये रिएक्शन यहाँ पे इसका निकालना है अपने। नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सेंट्रेशन इसका चाहिए आपको, राइट। इनका नंबर ऑफ मोल्स मिला, यहाँ पे नंबर ऑफ मिला, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या करना है? निकालना है आपको। 20 देखो, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। ये 20 मिलीमोल्स, ये 20 मिलीमोल्स, ये भी कितना बनेगा? ये भी कितना बनेगा? समझा? यहाँ पे देखो 1 है, एक ही मॉलिक्यूल है ना, 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल बन रहा है। जब ये 20 मिलीमोल्स है तो ये भी 20 मिलीमोल्स, ये भी कितने हो गए? 20 मिलीमोल्स, ये भी 20। अब आएंगे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 200, उसमें से कितने हैं? 20 अपॉन क्या बनेगा? 200। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा? CH3CONA का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। देखो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 20 अपॉन 200 कितना आ गया? 0.2, इज इट राइट है? देखो 1 अपॉन 10 मतलब 0.1, कितना आएगा? 0.1 मिला। जिसकी जरूरत थी सी की वो आ गया, है ना। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। pH is equal to half of pKw pKa plus log C।
PKW की वैल्यू कितना है 14 कितना है 14 टोटल वैल्यू PKW पूरा कितना है 14 है। तो 14 माइनस क्या लिखा log K प्लस log C, ये दोनों को अंदर लेके कर सकते हो log C प्लस यानी कि log 14 1.8 10⁻⁵ प्लस log C कितना आ गया 0.1। जैसा अभी log बताया आपको वैसा सेम निकालना है। 1.8 का निकाला कितना 0.2553 और ये 10⁻⁵ माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे कितना आ रहा है -1 आ रहा है -1 देखो ना कितना आ रहा है -1 ना -1 और ये +5 बनेगा 4 में से 1.8 का माइनस करोगे देखो 0. कितना 255 ना 0.26 लिखा है। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे इसी सब्सट्रैक्ट कर दिया 14 प्लस 4.74 माइनस कितना हो गया 1 माइनस माइनस प्लस इसमें माइनस करोगे आंसर हाफ ऑफ 17 पॉइंट क्या हो गया 7 14 प्लस 4 18.74 माइनस 1 कितना आ गया 7 इसका हाफ क्या गया PH कितना आ गया। सॉल्व कौन सा था यहाँ पे CH3COONA था ना CH3COONA मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे बेस है बेस स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये बेसिक है इसका पीएच कितना आ गया 7 से ज्यादा जाएगा 7 से ज्यादा नहीं है समझा। स्लाइड नंबर 1 फटाक से लिख दो। लिखो जल्दी आप लोगों को करना है सॉल्व करना है इसको। ये आपके लिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH4NO3 शुड बी डिसॉल्व पर लीटर क्वेश्चन देख के ही दो क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है इसको। परसेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.15 सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसिडेट यहाँ पे के दिया है के भी दिया है मतलब ये जो सॉल्ट है किससे बना हुआ है वीक एसिड और वीक बेस से। एच निकालोगे तो आपको परसेंटेज आएगा परसेंट में ये जो भी निकलेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है क्या मिलेगा परसेंटेज। ओके लिखा क्वेश्चन तो यहाँ पे लेक्चर खत्म करते क्या चलो बाय बाय ऑनलाइन थैंक्स ऑल ऑफ यू।